Hello friends, how are you? Welcome to the Pan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? School of Sculptural Art. Sculptural art is the most important here. The first century is a witness. The division of the Buddha is a two part. Hinayan, Mahayan. Mahayana Buddhist is encouraged or Buddha as a worship as a god in the human form. As a result, is a large number of Buddha is an image where to build in a different religious, and there were a three major school of the sculptural art and which are developed in this period. And this where is the Mathura School of Art, Gandhar School of Arts, and Amravati School of Arts. The next here is a Mathura school. There is a most important here arts cultures is a Mathura school. The most is a prominent contribution of the Mathura school to be a is a contemporary arts and was the image of a Buddha which were carved from the first time of earth. There is this art of form. The Mathura artist is a use a local red stone with a black spot to the make their image. The Mathura has also added to the large number of sculpture of the Jaina and the styles of the beside there is the Agyapathas of the stone slab to the place object of worship. The Brahmanicals' influence on their art school of the Mathura is also evident. During to the Kushan period, a number of sculpture and the Brahmanical is a devotees were to the couple and which is include of Kartike, Vishnu and Kuvera. There is a most important this time on the Brahmanicals is a genetics where to the curve included Kartika, Vishnu and Kuvera. The most important picture here show the Buddha art of the Gandhara Shailia. There is the most important here. The second here, the Gandhara School of Art. The Gandhara region was situated in the northern western part of India. Is a continent. The region was successively is ruled by the Greek. The Mauryas is a Sogas is a Sakas and the Kushan from mainly a century. The school of the art which development here around the beginning of the Christiana is era has been called to various and Greco-Roman. Indo-Greek is a Gracious Buddhist. This is a fair to the because this school has all the influence of Roman, Greek, and India. The themes of sculpture is the predominantly is a Buddhist, but their style is a Greek. The chief protons of the Gandhara art were is the Shakas and the Kushan. The stone used for the making of idol of Buddha and the Buddhist was predominantly blue-gray. Is a chaste or cheap characteristics of the Gandhara school of art lies in the beautiful is a portrayal of human figure. With extension there is a muscle of body. Buddha is depicted with the garment draped is a Greek-Roman fashion and with a very curly hair. And this is a beautiful image of Buddha are ranked among their best piece of the sculpture. There is the most important here. The Amravati School of the Art. The Amravati School of the Art flourished in the regions of the Andhra Pradesh between to the lower valley of the river Krishna and Godavari. The main pattern of this art form were the Satyavahan, but is carried on even later is a patronized by the successor is Ichhavaku ruler. This art is said to be a flourish between 150 BC and 350 AD. The sculptures of this school are mainly found on the railings of Peth and the other part of the stupa. And the thematics is the representation include the stories from the life of the Buddha. Or important characteristics of the Amravati school is the narrative art. The meditations and were carried with there is a manner that there is a sculpted on the incident in the natural way. For example, on the medallions aspect of the whole story of is the taming of the elephant by their Buddha. Another important feature of the Amravati art is their use of white marble like a stone to the curves and out of figure. And there is a prominence of the human figure rather than to the of nature. चट्टान काटकर भवन निर्माण और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत काफी प्रगति हुई। सतवाहन शासक
के काल में महाराष्ट्र में पुणे तथा नासिक के निकट ठोस चट्टानों को काट कर जो है बड़ी संख्या में मंदिरों, भवनों तथा भिक्षुकों के रहने के लिए निवास स्थानों का निर्माण करते थे और उस स्थान को जो है चैत्य के नाम से जाना जाता था तथा भिक्षुकों के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। कहते हैं उसके पश्चात था मूर्ति कला की शैलियाँ। अगर देखा जाए मूर्ति कला की शैलियाँ तो ईसा के बाद भी प्रथम शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म में दो विभाजन हुए। एक तो थे हीनयान और दूसरा था महायान। महायान बौद्धों में जो है बुद्ध के भगवान मानकर मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का जो है सृजन किया गया और इस काल में मूर्ति निर्माण की तीन प्रमुख शैली विकसित हुई। ये थी मथुरा शैली, गंधार शैली तथा अमरावती शैली। यानी देखा जाए तो ये जो था महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करने की जो यहाँ प्रथा चली तो इसने तीन शैलियों को जो है जन्म दे दिया, एक मथुरा शैली, गंधार शैली और अमरावती शैली। मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली जो थी समकालीन कला में मथुरा शैली का सबसे बड़ा योगदान महात्मा बुद्ध की वह मूर्तियां रही जो कला के इस प्रकार में समता पहली बार तराशी गई थी। मथुरा शैली के कलाकार मूर्ति बनाने के लिए स्थायी लाल पत्थरों का प्रयोग किया करते थे जो काले बिंदु के साथ करते थे। मथुरा शैली में बड़ी संख्या में जो है अयागमता या पूजा के लिए पत्थरों के टुकड़े को अतिरिक्त जैन तीर्थों की मूर्ति भी गढ़ी गई। मथुरा शैली में ब्राह्मणों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कुषाण के शासक काल के दौरान व्यापक संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण भी हुआ, जैसे कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर। यानी कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर इस समय के महत्वपूर्ण देवताओं में माने जाते थे। उसके पश्चात था कला की गंधार शैली। देखिए कला की गंधार शैली भी इंपॉर्टेंट रखता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गंधार क्षेत्र स्थित था। इस क्षेत्र पर यूनानी और मौर्य और सुक और शक का कुषाण वंशियों में सदियों तक जो है सफलतापूर्वक शासन किया और ईसाई युग के आरंभ में इस क्षेत्र में जिस काल की शैली का विकास हुआ उसे कई नामों से जाना गया, जैसे यूनानी, रोमन, भारतीय यूनानी, यूनानी बौद्ध। इसका कारण संभवतः इस बात पर आधारित था कि यूनानी अथवा भारतीय के प्रभाव रहे। मुख्यतः मूर्तियों का जो है विषय बौद्ध धर्म था और किंतु शैली यूनानी थी। गंधार कला के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे जो कि काफ़ी जो है गंधार शैलियों के संरक्षण किया। इस शैली में बुद्ध तथा वेदस्तु की मूर्ति निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्थर मुख्यतः भूरे नीले रंग के हुआ करते थे। कला की गंधार शैली की मुख्य विशेषता मानव आकृतियों के शरीर के विभिन्न मांसपेशियों सहित आकर्षण चित्रों में निवास करती है। महात्मा बुद्ध का चित्र जो था चित्रण यूनानी शैली में कपड़ा ओढ़कर घुंघराले बालों के साथ किया गया था। यानी घुंघराले बाल जो था काफी महत्वपूर्ण था। महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमाएं मूर्ति कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में आंकी जा सकती है। उसके पश्चात है कला की श्रेणी में अमरावती शैली का क्या विशेषता था। कहते हैं कृष्णा तथा गोदावरी की निचली घाटी के मध्य आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कला की अमरावती शैली विकसित हुई थी और इस कला को जो है मुख्य संरक्षक सतवाहन वंश के शासकों द्वारा मिला, किंतु यह उसके उत्तरवर्ती इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा संरक्षण मिलने के कारण बाद में भी फली फूली काफ़ी है। यानी इक्ष्वाकु वंशों ने काफ़ी जो है अमरावती शैली को सराहना किया। इस काल का उन्नत कला जो था 150 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक समझा जा सकता है और इस शैली की मुख्य कलाकृतियां बाड़े, स्तंभों और स्तूप के अन्य हिस्सों में पाई जाती है और इसकी विषय वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं भी सम्मिलित किया गया है। अमरावती शैली के मुख्य विशेषताएं जो है अखंडनीय कला है और जो है गोलाकार आभूषण इस प्रकार के उकेरे गए हैं कि वे स्वाभाविक तरीके से घटना का वर्णन करते हैं। जैसे एक आभूषण महात्मा बुद्ध द्वारा एक हाथी को पालतू बनाने की कथा की व्याख्या करता है। अमरावती शैली की दूसरी मुख्यतः विशेषता आकृति का उभारने के लिए सफेद संगमरमर का प्रयोग था और इस शैली में प्राकृतिक की तुलना में मानव आकृति की महत्वता अधिक दी गई थी। तो ये तीनों शैली जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और ये जो था इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ये तीनों शैली जो है आज के समय में भी काफ़ी विख्यात और काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है।